So in last class, what we discussed about IDA and we discussed about the hierarchy effect model, right? Today we are going to understand that what is the meaning of IMC, integrated marketing communication. What are the various participants of IMC? Okay, so we are going to complete this topic. But before completing this topic, I just want to know what is the IDA. IDA मुझे कौन बताएगा? Explain कौन करेगा मुझे? Raise your hand. Tell me about IDA. Okay. आइडा में 4 कंपोनेंट्स है. AIDA, A for awareness, I for interest, D for desire, and A for action. In the awareness phase, the customer gets to know about the product so that he gets aware about that product or service. Interest, in this the customer reads or finds information about the product, and slowly the interest of that customer gets more and more towards that product. The third thing is desire. A customer then develops a liking for that product or service that the manufacturer is offering. And the last one is action. The customer takes efforts to purchase that product. So in this 4 phase, IDA. Very good. And one more phase is included in this. Nowadays, it is also mentioned in this IDA. That is S. That is satisfaction. Means after purchasing, the customer is satisfied or not. For this, there is one more point, that is satisfaction. Okay. And what is hierarchy effect model? It is a kind of elaboration, or we can say it is a extended form of IDA. Who is going to tell me about the hierarchy model, hierarchy effect model? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Ma'am, in first phase awareness, where customer gets to know about their product. Second, knowledge. Consumer gain about knowledge about the product. And this is used by a potential customer. यहाँ पे कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, कंपनी के ऑफर के साथ डील कर, मतलब कंपेयर करती है, और फिर जहां भी कहीं लैकिंग होता है उस चीज को पकड़ के फिर उसका एडवांटेज लेके कस्टमर को देती है. थर्ड वन, लिंकिंग. यहाँ पे मैम कंपनी विल क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन विद द ब्रांड, विद द कस्टमर एंड ब्रांड. ठीक है, कस्टमर एंड ब्रांड. हाँ, they will try to influence the customers by creating the emotional messages. They try to associate the people, consumers, with the brand, right? So this is done in the linking form, linking phase. Next one, ma'am, preference. Where customer will not able to convince properly, then company will see the competitors mistake and correct the mistake and take advantage for them, and deals set the priority. मतलब मैम कंपनी यहाँ पे पहले मतलब आगे बोलिए, आगे बताइए. मैम यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंस लेती है, वो देखती है दूसरी कंपनी से कि वो कहाँ पे कुछ गलती करे, कहाँ पे लैकिंग है, फिर उसका एडवांटेज लेके वो अपने कस्टमर को सर्व करती है. और नेक्स्ट वन, कन्विक्शन. यहाँ पे कंपनी जितने भी डाउट होते हैं कस्टमर को क्लियर करती है. और लास्ट वन, परचेज, जो कि फाइनल स्टेज होता है. यहाँ पे परचेज हो जाता है. लेकिन देखो ध्यान दीजिएगा, इन द हायरार्की इफेक्ट मॉडल जो है, इसमें क्या है, फर्स्ट जो है अवेयरनेस. अवेयरनेस के लिए कोई भी कंपनी, देखो ये किसका फेज है, बेसिकली कस्टमर का परचेजिंग का जो वे है, तरीका है, उसको किस तरीके से कस्टमर जो है वो चेंज कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, स्ट्रैटेजी बना सकती है. तो कस्टमर सबसे पहले अवेयर होना चाहिए, बिकॉज अगर कस्टमर को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो वो प्रोडक्ट के बारे में कैसे जाने, वो कैसे परचेज करेगा. ठीक है, तो कस्टमर के पास प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है नॉलेज. एक बार जब उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया, जैसे एग्जांपल के लिए, आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप. ठीक है, अगर मुझे एक लैपटॉप खरीदना है तो ऐसे केस में मुझे अवेयरनेस किसके थ्रू मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, कहीं भी प्रमोशनल मीडिया जो भी है उसको देखेंगे और हमें अवेयरनेस मिलेगा, मतलब हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे. ठीक है, नेक्स्ट जब आएगा दैट इज नॉलेज. एक बार जब हम प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो गए तो हमारी जो भी नीड है, जैसे हमें मान लीजिए लैपटॉप चाहिए, हमें पता है कि हमें वो रिक्वायर्ड है, फिर हम क्या करेंगे, नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग जगह पे उसको और भी डीपली सर्च करेंगे, नॉलेज लेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांड अवेलेबल है उनके साथ क्या करेंगे, बेसिकली हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को, ब्रांड को. ठीक है, अब यहाँ नॉलेज के लिए वो क्या कर सकती है, कंपनी जो है वो एक
को बेटर करने के लिए कंपनी जो है वो ब्लॉगिंग और बहुत सारी इंफॉर्मेशनल और प्रमोशनल तरीकों को यूज करेंगे ताकि जो नॉलेज है कस्टमर तक प्रॉपर, क्लियर और ऑनेस्टी के साथ प्रोवाइड हो, यानी क्लियर और ट्रांसपेरेंट नॉलेज हो। नेक्स्ट आ जाता है लिंकिंग। कस्टमर को किस तरीके से बेसिकली मोटिवेट, इन्फ्लुएंस कर रही है कंपनी बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस, स्टेटमेंट्स व्हिच बेसिकली ट्राई टू लिंक द कस्टमर और एसोसिएट द कस्टमर इमोशनली विद द ब्रांड। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेफरेंस, यानी कस्टमर का कौन सी जो भी फाइनल प्रोडक्ट वो चाहेगा परचेज करना, उसका प्रेफरेंस होगी, प्रायोरिटी होगी। और प्रेफरेंस के लिए आप क्या करोगे, जो डिफरेंट ब्रांड जो है, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनसे हमारा प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल है उसको आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। फाइनली इज द कन्विक्शन। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कि मैं कहीं पर्टिकुलर किसी भी स्टोर पे जाके लैपटॉप परचेज करी हूँ, तो वहां के जो पर्सन से मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन होना, ठीक है, वहां पर मैं इंटरेक्ट हो रही हूँ, तो वहां पर जो बेसिकली कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है या कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो मेरे सारे डाउट्स वगैरह को क्लियर करेंगे। ठीक है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है दे विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट, मतलब जितने तरीके के डाउट है, आइदर दैट इज रिलेटेड विद प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन, ड्यूरेबिलिटी, every kind of confusion is basically cleared in the conviction stage. And finally, when I am satisfied with all the problems, all kinds of queries, then I am going to purchase the product. So this is a hierarchy of effect model. ठीक है, आइडा जो है उसी का बस एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में। नाम ही बता रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मिल जाना। ठीक है, इंटीग्रेट हो जाना, कंबाइन हो जाना, और बिल्कुल इसका मतलब जैसा आ रहा है वही सेम है कि यहाँ पर जो एक शॉर्ट में और लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो आईएमसी क्या है, आईएमसी इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स, दैट इज एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ठीक है, sales promotion, publicity, direct marketing, all kinds of tools are basically integrated together, but for what, but for providing the better knowledge, information and for influencing the consumer। यानी यहाँ पर जितने तरीके के टूल्स है मार्केटिंग में, जितने तरीके के टूल है, आप उसको प्रॉपरली कंबाइन करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो आईएमसी जो है, ये कंसेप्ट जो है, इसका क्या बेसिकली रीजन है, क्या इसका बेसिकली कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट है कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, वैल्यू को ऐड करें, बेसिकली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा, मतलब उसमें जो प्रमोशन हो रहा है उसमें वैल्यू को ऐड ऑन करें। ठीक है, और बाकी जितने टाइप के टूल्स हैं उसको कंबाइन करें। ठीक है, और ताकि क्लैरिटी मिले, कंसिस्टेंसी और एक मैक्सिमम कम्युनिकेशन इम्पैक्ट और फाइनल इम्पैक्ट किस पे पड़े, आपके कंज्यूमर पे। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमसी, क्लियर हो गया। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, यानी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए जब हम बहुत सारे जितने प्रमोशनल टूल हैं, चाहे तो 2, 3, 4 या सारे के सारे प्रमोशनल टूल को हम यूज कर सकते हैं कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। मैक्सिमम इम्पैक्ट, इट्स अबाउट मैक्सिमम इम्पैक्ट, नॉट नॉर्मल, मैक्सिमम इम्पैक्ट, और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है जो कस्टमर प्रॉपरली कस्टमर को मिल सके। ठीक है, हम इसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में क्लोथ्स का ही ले लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ऑनलाइन में भी उसके बारे में नॉलेज पूरा मिल जाएगा, सोशल मीडिया ओपन कीजिएगा एडवर्टीजमेंट भी मिलेगा, फेसबुक ओपन कीजिएगा एडवर्टीजमेंट मिलेगा, गूगल कीजिएगा वहां पर उसको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर साइट को ओपन कीजिएगा तो वहां पर भी, जैसे ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म से, उसमें भी आपको सारे के सारे एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, मतलब यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। सो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो बिलबोर्ड्स भी यूज करती है, बाहर बिलबोर्ड्स भी हैं, कई बार क्लैडिंग का यूज करती है, रिटेलर्स के शॉप को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, सॉरी डेकोरेट करती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, सो लिखिए आईएमसी क्या है, लिखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बहुत सारा चीज है आईएमसी में, बेनिफिट्स आर देयर, tools are there. Tools, agar if they are going to ask that what are the various tools of IMC, so you just need to write all the tools of promotion like
इट इज डेफिनेशन लिखवा रही हूँ IMC का. आई गेस डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द बुक, बट ये लिखा हुआ है. IMC जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज रिटन ऑन द पेज नंबर 144. यू कैन टेक फ्रॉम दैट आल्सो बिकॉज दैट इज ओके, मतलब डेफिनेट मीनिंग इज ओके. ओके, चलिए हम शुरू करते हैं. IMC क्या है, लिखिए इसमें. अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, according to AMA, American Marketing Association, IMC क्या लिखिएगा, a comprehensive plan, inverted comma, a comprehensive plan that evaluates, a comprehensive plan that evaluates the strategic role of variety of communication, a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines and combines these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact. A comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines. कौन कौन से हैं इसमें, बेसिकली आपके वही पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल. एंड कंबाइंस दिस डिसिप्लिन, और कंबाइन किया जा रहा है इन डिसिप्लिन को, combine these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact. Let me tell you one example of Viva. ठीक है, आप लोग कभी भी Viva की साइट को देखना, ठीक है, what kind of strategy they are using, किस तरीके से वो क्या काम करते हैं. You will see the billboards of that. Billboards आपको easily मिल जाएंगे, ठीक है. Second, they are basically उनके बहुत सारे showrooms हैं, उनके अपने exclusive stores are present, तो that is also a part. वहाँ पर बड़े boards लगे होते हैं, ठीक है. Online आप open कीजिएगा, you will get all the information about that, all kind of discounts and all. They are also using even direct marketing approach. They are also basically mailing so many consumers. So mail, जैसे I am also getting the mail from that. So this is a concept of direct marketing they are also using. They are also basically using the modern techniques. Direct marketing is a modern technique kind of, ठीक है. Social media is a kind of modern technique, but the other traditional techniques are newspaper, journals and all. And even you will get the advertisement in that place. Even journal maybe you will see, newspaper maybe you will see, online भी you will see, you will get the direct mail. Even these all kinds of the mixture of all kind of communication are using. Viva are using all kinds of communication and promotional tools. So this is basically IMC, and this is going to basically clarify all kind of they are going to clarify the queries, they are going to clarify all kinds of questions which is arise in the mind of the consumer. They can easily able to get the information about the discount, sales, promotion. They are easily able to get to know about all kind of changes which is happening in the basically that particular company, Viva. तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये इसको क्यों, ये एक IMC का पार्ट है, जहाँ पर आप मिक्स अप्रोच यूज कर रहे हो ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ IMC, ठीक है. यहाँ पर अगर मान लो मैं एक पर्सन हूँ और मुझे, आप लोगों को पता है कि एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, आप लोग भी बहुत कम देखते होंगे. इफ यू आर बेसिकली वाचिंग एनी वेब सीरीज एंड ऑल, एंड बीच में एडवर्टीजमेंट आता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, हटा देते हो. तो अब एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट एज सच नहीं बचा है, मतलब द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज नॉट एज सच अभी उतना ज्यादा, मतलब बेसिकली इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है कंज्यूमर को. सो वी कैन नॉट ओनली बेस्ड ऑन द सिंगल टाइप ऑफ promotional tool. That's why now the company want to touch every store and they want to make the maximum impact in the mind of consumer. तो इसको हम कहते हैं IMC, Integrated Marketing Communication. Nowadays mostly every company are using this approach, IMC. Earlier the company like Parle-G, Nirma, they were basically totally based on one thing and that was advertisement. ठीक है, टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट पे पूरा बेस्ड है. बट नाउ दीज ऑल कंपनीज, जो भी अभी नई रिसेंट कंपनीज है, वो चेंजेस मॉडिफिकेशन करी एंड नाउ दे आर कन्वर्टिंग प्रमोशन इनटू द प्रमोशनल टूल को IMC की तरह, मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यू यूज.
whatever you think about it, that why promotion is considered as a communication? क्योंकि प्रमोशन करते ही हैं ताकि कम्युनिकेट कर सके। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैम अगर कम्युनिकेशन टूल आएगा तो क्या लिखेंगे, प्रमोशनल टूल आएगा तो क्या लिखेंगे, तो आंसर विल बी सेम। सी कम्युनिकेशन इज समथिंग जहां पर हम वी आर सेंडिंग द मैसेजेस, ठीक है। एक इसमें कौन कौन हो सकते हैं आपके, एक मैसेज सेंडर हो सकता है, एक रिसीवर होगा, बीच में आपके मीडिएटर इंटरप्ट हो सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन वगैरह का काम होता है। अगर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसे ही होता है, एक होता है सेंडर, फाइनल होता है रिसीवर, बीच में होता है बेसिकली इंटरप्रिटेटर जो चेंज करता है आपके मैसेज को, डिकोड करता है और फाइनली मैसेज को प्रोवाइड करता है। तो सेम थिंग इज इवन हैपनिंग विद द प्रमोशन। यहाँ पर प्रमोशन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर भी करता है, कई बार उनके इंटरमीडिएरीज यानी होलसेलर्स, रिटेलर्स भी क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल एम क्या होता है, यानी कि जो हमारे रिसीवर है वो कौन है, कंज्यूमर है, उन तक ये फाइनल मैसेज प्रमोशन का या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पहुंच जाए, ठीक है। सो आईएमसी क्या है ये क्लियर हो गया सबको। व्हाट आर द वेरियस, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्यों यूज हो रहा है आईएमसी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आईएमसी, क्यों आईएमसी को यूटिलाइज करने की जरूरत है, क्यों उसको यूज करने की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहली चीज, इसका फर्स्ट रीजन है कि व्हाई आईएमसी इज रिक्वायर्ड। तो पहला चीज है द शिफ्ट फ्रॉम द फ्रैगमेंटेड, ये बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द मार्केट एरिया सिचुएशन कह सकते हैं। पहले क्या था कि जो मार्केट था वो हमारा बहुत कंसंट्रेटेड होता था, कई बार लिमिटेड होता था, ठीक है। अब क्या है कि वो एक्सपैंड हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। और पीपल जो है, जो नाउ पीपल जो ज्यादातर क्या होता है, बिजी शेड्यूल होता है उनका, सो दे कैन नॉट यूज ओनली वन काइंड ऑफ प्रमोशनल क्राइटेरिया। सो मार्केटिंग स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर आर चेंजेस, पहला रीजन मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कस्टमर परसेप्शंस एंड नीड्स आर चेंजेस, कस्टमर का परसेप्शंस और नीड जो है वो हमेशा की तरह चेंज हो रहा है और इस बार एक्सट्रीम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट का इनोवेशन हो रहा है, हमेशा नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको दिखेंगे, नई सर्विस मार्केट में दिखेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो चुका है। इन सब रीजन की वजह से क्या हुआ है कि हमें आईएमसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की इसीलिए जरूरत है क्योंकि हम सिर्फ एक बेसिस पे नहीं अब टिक सकते, क्योंकि ना ही हमारे कंज्यूमर पहले जैसे हैं, उनके परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं, उनके एटीट्यूड चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उनके नीड प्रेफरेंसेस आए दिन बहुत डायनामिक है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो वी जस्ट नीड अ प्री प्लान प्रॉपर आईएमसी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट अब इसमें एक टर्म है द शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड टू आईएमसी, द शिफ्ट फ्रॉम फ्रेगमेंटेड टू आईएमसी। फ्रेगमेंटेड का मतलब देखो क्या होता है, पहले ये कंसेप्ट है ऐसे, मतलब ये एक अलग मार्केट, एक ये अलग यूज कर रहे हैं, ये अलग इस तरीके से यूज कर, अब ये चारों जो हम लोग इधर इधर अलग अलग यूज करते थे, इसको हम आईएमसी की तरह ले रहे हैं। यानी कि हम जो फ्रैगमेंटेड कंसेप्ट को यूज करते थे, यानी कि एक जगह पे हमने एडवर्टीजमेंट कराया, कहीं हमने पर्सनल सेलिंग कराया, या फिर हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे टिके हैं, सिर्फ पर्सनल सेलिंग पे टिके हैं, या फिर हम इन सब को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया और सारे मार्केट में हमने आईएमसी को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हो रहा है कि जो फ्रैगमेंटेड सिचुएशन से अब हम मूव कर गए आईएमसी के टुवर्ड, ठीक है। इसमें एक टर्म है ये जो द शिफ्ट फ्रॉम द आईएमसी फ्रैगमेंटेड टू आईएमसी में, कि पहले क्या था, मतलब प्रायर टू द इमरजेंस ऑफ द इंटीग्रेटेड आईएमसी से पहले का क्या सिनेरियो था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो जो था ये 1990 से पहले आईएमसी को यूटिलाइज नहीं किया जाता था, आईएमसी को यूटिलाइज नहीं किया जाता था 1990 से पहले, ठीक है। 1990 से पहले जो सारे इंफॉर्मेशंस थे, जितने भी कंज्यूमर्स थे, उनको हम इंफॉर्मेशन कैसे देते थे, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, और कुछ और जैसे कभी न्यूज़पेपर के थ्रू दे देते थे, टेलीविजन रेडियो के थ्रू, ठीक है। और ये एक ही तरीके से वन वे तरीका होता था कम्युनिकेशन का, यहाँ पर कोई ना मिलना होता था कस्टमर का मार्केटर से, ना कस्टमर जो प्रोवाइडर एग्जीक्यूटिव, किसी से भी मिलना नहीं हो पाता था, एक तरीके से सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो गया, बस खत्म। ये 1990 से पहले था, बिफोर आईएमसी के आने से पहले, ठीक है। उसके बाद जो अभी उस समय क्या था कि एडवर्टीजमेंट आप दे रहे हो, लेकिन वही प्रोडक्ट का दे रहे हो जो आप बना रहे हो, आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से या नहीं, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं, कोई कंप्लेनिंग प्रॉपर बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं पूछ सकते, कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते, कुछ भी इस तरीके का सीन था। अभी
पहले सिनारियो था किसका, बेसिकली आईएमसी से पहले। अभी क्या सीन है, अभी बेसिकली ये माना जाता है टुडे, अभी जो सिचुएशन है, अभी हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रेड प्रमोशंस यूज करते हैं, फिर कंज्यूमर प्रमोशंस को यूज करते हैं, ब्रांडिंग यूज करते हैं, पब्लिक रिलेशन यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज ऑफ द ऑल दोस रीजन व्हिच आई एक्सप्लेन। ठीक है, पहले कंज्यूमर वगैरह जो भी थे उनको सिर्फ एक तरीके से हम कम्युनिकेट कर देते थे, प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते थे। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जो मैंने टॉपिक आपको बताया है, द शिफ्ट फ्रॉम फ्रैगमेंटेड टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो उसमें ऐसे लिखे, बिफोर 1990 we dependent on only one way of communication, and that is advertisement, and we are doing advertisement through newspaper, radio, and finally television. ठीक है, after 1990 we started using IMC, and nowadays we are using IMC in every aspect, in every market. And what are those things, क्या क्या चीजें हैं वो आपके, वो सारी चीजें आपके आ जाएंगी, सारे एडवर्टीजमेंट को टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या क्या चीजें आई हैं इसमें, आप कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट कि अभी का जो नया सिनेरियो वो लिख लिया ना आप लोगों ने कि अब आईएमसी में क्या हुआ है, दैट इज नाउ इंटीग्रेटेड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसे, अ शिफ्ट फ्रॉम मास मीडिया एडवर्टाइजिंग टू मल्टीपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट पे बेस्ड थे, सिर्फ और सिर्फ मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर दिया, मतलब सब कंज्यूमर को कवर तो कर लिया, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है, कंज्यूमर का क्या फीडबैक है, उससे कोई मतलब। ठीक है, बट नाउ there is a shift from the mass media advertisement to multiple form of communication. What are those multiple form of communication? What are those multiple form of communication? Multiple form of communication. A shift from mass media advertising to multiple form of communication. Multiple form of communication. Second point है the growing popularity of more specialized media. The growing popularity of more specialized media. ठीक है, more specialized media. अब पहले क्या था कि हमें सिर्फ मास मीडिया अप्रोच करते थे, अभी के टाइम पे ना हम इंडिविजुअल कंसेप्ट को भी अडॉप्ट करते हैं, यानी पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन भी हम ट्राई करते हैं क्या करने का, डायरेक्ट मार्केटिंग यही तो है, पर्सन टू पर्सन आप मेल कर रहे हो सबको। ठीक है, तो यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड कंसेप्ट की तरफ हम मूव कर गए, जहां मास मीडिया से वी आर नाउ मूव टुवर्ड द इंडिविजुअलाइज्ड कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी में लिखिए, नाउ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड मीडिया। स्पेशलाइज्ड मीडिया का मतलब नीश मार्केटिंग, सबको पता है, नीश मार्केटिंग सबको पता है। यहाँ पर क्या होता है, एक सेगमेंट के अंडर में भी हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे अगर हम सिर्फ सेगमेंट्स को बांटे तो एक सेगमेंट पे हम बेसिकली फोकस करते हैं, उसके अंडर वाले तो माइक्रो हो गए। तो वो जो एक सेगमेंट है नीश मार्केटिंग, यहाँ पर भी वही बात बोला जा रहा है, वन स्पेशलाइज्ड मीडिया यानी कि नीश मीडिया, यानी कि हम हर सेगमेंट को कवर करने के लिए अलग अलग टाइप के मीडिया को यूटिलाइज और यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए मोर स्पेशलाइज्ड मीडिया, ब्रैकेट में नीश, NICH। ठीक है, आगे लिखिए which considers individualized pattern, which consider individualized patterns of consumption and increased segmentation of consumer tastes and preferences. See, एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ अब वो नहीं है कि अब आपको कंज्यूमर को बताना है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, क्या है। कंज्यूमर आर नाउ नॉलेजेबल, दे हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सो यू जस्ट नीड टू मेक दैट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म, और हर एक एरिया के कंज्यूमर को क्या कर पाए, वो कवर कर पाए। ये बेसिकली अब एम किस चीज का है, बेसिकली आईएमसी का, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर वो इंडिविजुअलाइज पैटर्न हर एक का कंजप्शन, डिमांड, नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या करे, अब शिफ्ट हो गया पूरा मास मीडिया इन इंडिविजुअलाइज पैटर्न में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए, द मूव फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर डोमिनेटेड मार्केट टू रिटेलर dominated and consumer controlled market. The move from manufacturer dominated market to a retailer
dominated, comma consumer controlled market. यानी earlier what kind of scenario was there? Like manufacturer जो था वही पूरा मार्केट को डोमिनेट करता था, वही सिर्फ एडवर्टीजमेंट करता था और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और उसको प्रमोट करना उसके हाथ में था. ठीक है, जो दिखाया जो बनेगा वो दिखाया जाएगा, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर. But now the market is controlled by the consumer because consumer is the king of the market. Whatever we are doing, whatever we are making, that is according to consumer. So यहाँ पर जो सिनेरियो जो पहला फेज पहले का जो सिचुएशन था अब चेंज होकर के क्या हो गया है कि रिटेलर और कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो चुका है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर डोमिनेटेड मार्केट. ठीक है, सो मार्केट जो मैन्युफैक्चरर होते थे वही अपने हिसाब से प्रमोशन करते थे प्रोडक्ट का, बट अभी क्या है कि रिटेलर्स आर आल्सो प्रमोटिंग अबाउट द प्रोडक्ट, they are also giving information about the product, as well as the consumers and they are even knowledgeable, they will get or extract the knowledge from the different sites, different kind of browser, right? Next, the growing use of data based marketing, the growing use of data based marketing as opposed to general focus advertising and marketing, general focus advertising and marketing, जनरल फोकस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो अभी आप लोग देखो, अच्छा यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर वीडियोस देखते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर मतलब जो नए नए फूड का नए नए प्रोडक्ट के जो वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, देखते हो वेद? Yes, ma'am. अच्छा यहाँ Yes, पर से यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करना कि और बहुत सारे कंटेंट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, कंटेंट लिखे हुए होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, फीडबैक्स लिखे होते हैं. तो अब जो पहले मार्केट क्या था कि हमें सिर्फ देखना होता था, हमने देखा एडवर्टीजमेंट देखा, हमें उतना ही जो भी हम उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया बस हमें उतनी नॉलेज है. अभी क्या है ना कि हम डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन की तरफ ज्यादा मूव ऑन कर गए, यानी कि फॉर बाइंग एनी काइंड ऑफ थिंग, नॉट कन्वीनियंस प्रोडक्ट बट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए हम लोग कोई भी देखिएगा हम लोग डेटा देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि आजकल लोग एजुकेटेड हैं, ब्लॉग्स देखेंगे, रिटन फॉर्म में स्पेसिफिकेशन देखेंगे. तो यहाँ पर जो यही सिचुएशन हुआ है कि अब जो डेटा बेस्ड मार्केटिंग ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी डेटा पे डिपेंडेंट हो और मार्केटर्स भी जो है वो भी डेटा पे, कंज्यूमर के नंबर्स पे, इन सब पे डिपेंडेंट है. तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, जनरल फोकस जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में था अब वो मूव ऑन कर गया, ठीक है. और अब हमारे पास क्या है बेसिकली, अब हम किस चीज पे बेस्ड है, डेटा इंफॉर्मेशन पे, और एक बोल सकते हैं इथिकल और एक बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल वे ऑफ नॉलेज, मतलब जहां पर हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विसेज, अबाउट द नंबर ऑफ कंज्यूमर, मार्केटर के पास भी और कंज्यूमर के पास भी, दोनों के पास. नेक्स्ट unlimited internet access and greater availability of online product, unlimited internet access and greater online availability of goods and services, unlimited internet access and greater online availability of goods and services. Now we are not dependent on only offline way, ठीक है, सिर्फ ऑफलाइन पे हम डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस अब बहुत इजी हो चुका है. तो अब हमारे पास बेसिकली ग्लोबली किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने के चांसेस है. अगर कभी भी आप देखना कंटेंट पढ़ना, किसी भी साइट पे देख लेना, क्रोन हो गया ये सब, तो उसमें बहुत सारे आपको मार्केटिंग के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है. तो अभी हमारे पास इंटरनेशनल वे में भी हम प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट शुड बी ब्रांडेड. नॉर्मल और रीजनल प्रोडक्ट्स के बारे में अब आज भी पता लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल है. नाउअडेज आल्सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल बेस, एडवर्टीजमेंट या फिर शॉपकीपर्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, बट जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनके बारे में विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्लॉग्स, इंटरनेशनल कंटेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द इंडियन कंटेंट्स. और इंटरनेट एक्सेस इतना ईजी हो गया है कि इंटरनेट की वजह से ये सबको बोल सकते हैं, स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की वजह से वी आर एबल टू एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है. नेक्स्ट वन इज टूल ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो टूल्स अगर आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, तो यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दिस थिंग, पर्सनल सेलिंग एंड ऑल, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं. लेकिन इसको अगर हम आईएमसी प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली ये जो है एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है. इनिशियल स्टेज में यू जस्ट नीड टू डू प्लानिंग, ठीक है. और इसमें कौन कौन टाइप के आप टूल यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स टूल को यूज कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो हम लोग
पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस के लिए करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे दीज आर लार्जली प्रमोशनल टूल्स और विच इंक्लूड ये सब कुछ एक चीज को इंक्लूड करते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। दीज आर लार्जली प्रमोशनल टूल्स हैं और ये सब क्या इंक्लूड करते हैं, एवरीथिंग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या क्या इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। इन शॉर्ट IMC में आप सारी चीजों को लिख लेना। IMC में क्या क्या होगा आपका, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ब्लॉगिंग भी लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख लेना, वेबिनार्स लिख लेना, इवेंट्स लिख लेना, कैंपेन्स लिख लेना, ठीक है। और एक और चीज आप यूज कर सकते हो, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, ये सारा का सारा जो इंटरनेट बेस्ड जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसके लिए यूज होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये सारे के सारे जो भी हैं ये मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स हैं या मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स कहेंगे। और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स है, कभी भी क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, तो ट्रेडिशनल में क्या लिखना, न्यूज़पेपर, जर्नल्स और ये सारी चीजें, मैगजीन्स वगैरह, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अच्छा, बेनिफिट्स में आते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं IMC के, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अच्छा, एक बात बताओ, IMC का बेनिफिट है, सबसे पहला अगर मैं बेनिफिट बोलूं तो ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये मैक्सिमम इम्पैक्ट डालेगा किस पे, कंज्यूमर पे। कोई भी तरीके का क्वेरी, कंफ्यूजन इजीली सॉल्व हो जाएगा कंज्यूमर का, और मैक्सिमम इम्पैक्ट का मतलब कि 100% इन्फ्लुएंस करने के चांसेस है। आज भी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट या कह सकते हैं प्रमोशनल टूल पे ही डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो हमें पता लग जाएंगी चीजें, नहीं, स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। बट कन्वीनियंस ये हो गया कि वी हैव नाउ इंटरनेट एक्सेस, सो वी कैन basically use these we can basically see all these advertisement and information quickly and conveniently। घर पे भी बैठे बैठे आराम से मिल जाएगा, जरूरी नहीं बाहर जाओ बिलबोर्ड को ही देख के इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो विथ मतलब कह सकते हैं पहला इसका बेनिफिट जो क्या है इसमें लिखिए, पहला बेनिफिट क्या है इसका लिखिए, with so many products and services to choose from, consumer may be confused, ठीक है। With so many products and services you're choosing from them, that is consumer may be confused, ठीक है, यानी कंज्यूमर कंफ्यूज हो सकता है, बहुत सारे सर्विस और प्रोडक्ट है। इफ यू विल यूज द प्रॉपर IMC, मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को प्रॉपरली यूज कीजिएगा तो क्या होगा, इट विल एबल टू बेसिकली डिक्रीज देयर कंफ्यूजन और डिक्रीज द डायलेमा वाला सिचुएशन, यानी कि जो कंफ्यूजन है ना उसको दूर करने के लिए IMC बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यानी इतने प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, अगर आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कंज्यूमर तक कोई इंफॉर्मेशन जो है, सारे कंज्यूमर तक कुछ चीजें पहुंचे ही नहीं, ठीक है। इतने नए नए प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यहाँ पर लिखिए कि IMC बेसिकली रिड्यूस द कंफ्यूजन ऑफ द कंज्यूमर व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम सो मेनी, वी कैन से फॉर चूजिंग द प्रोडक्ट बिकॉज सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखना है कि कंज्यूमर आर मे बी कंफ्यूज बिकॉज सो मेनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रेजेंट, सो IMC इज बेटर टूल फॉर डिक्रीजिंग द कंफ्यूजन। क्लियर हो गया? आप समझ में आया क्या लिखना है? लिख लोगे? Yes, मेरे प्रोडक्ट और सर्विस बहुत सारे हैं, अब उसमें से एक प्रोडक्ट को चूज करना, सर्विस को चूज करना बहुत मुश्किल है। आपके इंफॉर्मेशन ना हो, कुछ भी हो सकता है, और या फिर वो ओवरलैप हो सकता है, यानी एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप देख रहे हो, कंफ्यूजन में हो। तो ऐसे केस में बिकॉज ऑफ द IMC यू कैन बेसिकली डिक्रीज द कंफ्यूजन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट, मेजर बेनिफिट जो है बेसिकली इसका क्या है कि इट कैन लीड टू द इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस, it increase the brand awareness among the consumer, it increase the brand awareness among the consumer, ठीक है। क्योंकि IMC की इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है बेसिकली जो कंपनी के द्वारा यूज हो रहा है, इसी की वजह से जो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर
कंज्यूमर जो है आपका, कंज्यूमर जो है वो एक प्रॉपरली आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। इफ यू विल सी मल्टीपल हर जगह पे इफ यू विल सी द ब्रांड नेम एट ऑल, so it is going to increase the brand awareness about your product and service, या फिर increase the brand awareness, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करने में आईएमसी का पूरा रोल है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आईएमसी को अगर बेटर तरीके से यूज किया जाए ना, तो दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। IMC, if we are totally dependent on advertisement, it is that kind of promotional tool जहाँ पर आपको बहुत hefty amount पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप IMC को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, हर एक चीज का एक प्रॉपर रेशियो बनाकर प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, तो ऐसे केस में कई बार IMC जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है प्रमोशन करने का, ठीक है। सो दैट कैन बी द कॉस्ट इफेक्टिव वे फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आज एक और चीज मैं बताऊंगी कि कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादातर आजकल टाइम जो है, ज्यादातर लोग वर्किंग है, ठीक है। इवन एवरीवन, विमेन, मेन, ठीक है, सब ज्यादातर आजकल वर्किंग है। ऐसे केस में द पीपल आर बेसिकली स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन कंप्यूटर, मोर टाइम ऑन मोबाइल, ठीक है। तो इसी की वजह से मार्केटर्स जो हैं वो मल्टीपल एक्सपोजर की वजह से उन्होंने ये बेसिकली यूटिलाइज किया आईएमसी को, ताकि हर एक जगह पे उनके ब्रांड का इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। So brand using the different touch point because of the people, the way of living जो है वो people का change हो चुका है, उनका जो lifestyle है बदल चुका है, because the people are spending more time on the laptop and mobile, ठीक है। So basically they can use IMC for the brand awareness, they can use the different social media। next क्या है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का, कि इट क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। इट क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर कंपनीज, टू बेसिकली इंक्रीज एंड बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट, टू इंक्रीज या फिर बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक और यूटिलाइजेशन आईएमसी का क्या है, बेसिकली इट इंक्रीज या फिर इट हेल्प टू बेसिकली क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखो ऐसे तो कहा जाए तो अगर मैं बोलूं, अगर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट देख रही हूँ, जैसे अगर मुझे कोई भी चीज खरीदना है, मुझे अगर मोबाइल भी खरीदना है, तो मेरे पास मल्टीपल ब्रांड के ऑप्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का यहाँ पर बात कहाँ से आया, क्योंकि अगर यहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट होंगे, देन यू आर एबल टू इवैल्यूएट योर प्रोडक्ट ना, दैट कौन सारे प्रोडक्ट से कितना बेटर है, मतलब बाकी प्रोडक्ट से कितना बेटर है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में या फिर क्लैरिटी में हेल्पफुल है आईएमसी, और इसी की वजह से आपका सेल्स और फाइनली प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लो कि मुझे अभी मैं बता रही हूँ 2 दिन पहले की बात, आई वांट टू परचेज अ मोबाइल, व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, एमआई, सैमसंग एंड ऑल। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हिच वन आई नीड टू बाय, एमआई खरीदूं, रियलमी खरीदूं, सैमसंग खरीदूं। तो लाइक दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन वाज अराइज इन माय माइंड, ठीक है। तो लाइक इसके लिए अब जब मेरे ब्रदर ने बोला नहीं दिस वन इज द बेटर वन, दीदी ये वाला खरीदो, सो दिस इज, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसने बाकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज थे उनसे सबको प्रोडक्ट को कंपेयर किया। सो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपको इजीली अवेलेबल है, और जिसकी वजह से यू आर इजीली एबल टू कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिटिव ब्रांड एंड यू आर एबल टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी। क्लियर हो गया? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नाउ नेक्स्ट आईएमसी प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द वेरियस आईएमसी प्रोसेस। सी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस तो ऐसा सच नहीं है, बट हाँ अगर इफ यू आर यूजिंग आईएमसी द प्री प्लानिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। प्लानिंग क्लियर होना चाहिए और आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज अगर आप वैसी चीजों को, जैसे मान लो कि अगर हम डायरेक्ट मेल को रूरल एरियाज में, खैर अब तो होने लगा है, बट अगर हम रूरल एरियाज में डीएम करने लग रहे डायरेक्ट मेल, सो दैट इज नॉट द इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद देम। रीजन बिहाइंड इट कि स्टिल द इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट राइट देयर, ठीक है। और वहाँ बहुत सारे लोगों के पास आज भी हो सकता है स्मार्टफोन अवेलेबल ना हो। So यहाँ पर you have to knowledge about the basically different market sectors, different kind of consumer area, and you have knowledge कि कौन सा better suitable है। अगर ये चीज नहीं हुआ ना तो that is going to increase the cost। हो सकता है कि cost increase हो जाए और आपका product का demand as such increase ना हो, तो ऐसे केस में you are suffer from
ठीक है। तो आईएमसी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव की जगह पे कई बार कॉस्टली प्रोसेस भी हो सकता है इफ यूर प्लानिंग, प्री प्लानिंग, इफ यूर स्ट्रैटेजी अबाउट द मार्केट एरिया, अबाउट द कंज्यूमर, इन सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो टाइम टेकिंग हो सकता है, बिकॉज आप जो है अलग अलग सेगमेंट के लिए हो सकता है अलग अलग अप्रोच को यूज करो, ठीक है। तो टाइम टेकिंग और कॉस्टली इवेंट हो सकता है। खैर ऐसे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज के चांसेस कम है। बट आईएमसी प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो आईएमसी प्रोसेस में कुछ पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं, यानी कि इन्वॉल्व होते हैं। एडवर्टाइजर और क्लाइंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजर और क्लाइंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में एक लाइन मैंने बताया था कि जो एडवर्टीजमेंट को रेडी करता है, डिजाइन करता है ना। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर बेसिकली आप उसको शो करोगे, ब्रॉडकास्टिंग। मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड कोलेटरल सर्विसेज। तो ये 5 आपके हैं, आपके एडवर्टाइजर, द एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड कोलेटरल सर्विस। शॉर्टकट तो आई थिंक सो। बात करने का तरीका याद रहा। सी से होगा कोलेटरल सर्विसेज, ए से होगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, टी से होगा आपका द एडवर्टाइजर और क्लाइंट, एम से होगा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। याद हो गया सबको? ठीक है। अब ये क्या क्या है, ये कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, इनका क्या क्या रोल है वो देखते हैं। द एडवर्टाइजर और क्लाइंट, अगर हम द एडवर्टाइजर और क्लाइंट की बात करें तो वो क्या होते हैं? The client has the product, service or cause to be marketed and promoted and also provide the fund that pay the advertising and promotion. The client has the product. Client का मतलब जैसे मैं हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ तो I am the client, ठीक है। या फिर एडवर्टाइजर, यानी मेरी तरफ से क्या होगा, एडवर्टीजमेंट का काम होगा। तो जो की पार्टिसिपेंट जो होगा इसमें, कह सकते हैं कि मैं क्लाइंट हूँ और मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज, जो मुझे क्या करना है, मार्केट करवाना है, यानी मार्केट में सेल करवाना है, मार्केटेड और प्रोमोटेड, यानी प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज को। और मैं क्या करूंगी, आई विल प्रोवाइड द फंड फॉर व्हाट, फॉर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। द एडवर्टाइजर जो है वो क्या करेगा, दे डेवलप द मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड मेक द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द एडवर्टाइजिंग, यानी मार्केटिंग प्रोग्राम बनाऊंगी मैं, जैसे मतलब मेरी जो टीम होगी वो मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो क्या करेंगे, मार्केटिंग प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे और फाइनल जो क्या एडवर्टाइज कराना है दैट विल बी वो मेरा डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली एडवर्टाइजर और क्लाइंट कौन है, कौन जो पार्टिसिपेंट है बेसिकली कम्युनिकेशन का, आईएमसी के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पहला पर्सन वो होगा जो बेसिकली प्रोडक्ट जिसका है, यानी जो क्लाइंट है, जो एडवर्टाइजर है वो क्या करेगा, जो क्लाइंट है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बेसिकली मार्केटिंग का और प्रमोशन का काम करवाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए, एवन को फंड भी प्रोवाइड करेगा अगर उसने किसी थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व किया है, और ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता ही है, तो जो थर्ड पर्सन है उसको फंड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्रमोशन एंड ऑल। और एडवर्टाइजर मतलब मैं क्या करूंगी, बेसिकली मैं यहाँ पर प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम्स वगैरह, मार्केटिंग प्रोग्राम्स वगैरह और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन है वो मेरे हाथ में डिसीजन रहेगा, ठीक है। और प्रमोशनल प्रोग्राम वगैरह मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगी। और जो कंपनी है मे परफॉर्म मोस्ट ऑफ दिस एफर्ट इटसेल्फ, और बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो खुद से एफर्ट कर लेती है, क्योंकि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, हो सकता है कि सारा काम मैं खुद से ही कर दूं, नहीं तो मैं क्या करूंगी कि कुछ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट वगैरह या कुछ इन हाउस डिपार्टमेंट वगैरह का एक अलग डिपार्टमेंट बनाऊंगी जो इस काम को देखेंगे या फिर मैनेज करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है द एडवर्टाइजर और क्लाइंट, यानी कि जिसकी कंपनी है, मैन्युफैक्चरर जो है जिसको खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो क्या काम कर रहा है, वो बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करना है, यानी मैसेज जो है फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसके लिए मार्केटिंग प्रोग्राम्स वगैरह बनाना, ये सारा काम मैं खुद करूंगी। हो सकता है कि मेरी कंपनी को थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट हो तो वो बेटर है, मैं थर्ड पर्सन यानी किसी आउटसाइडर से ले सकती हूँ इसके लिए हेल्प, या फिर मैं खुद का अपना एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को बनाऊंगी और ये सारे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीजों को हैंडल करेगा कि मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, प्रमोशन कैसे किया जाए, एडवर्टीजमेंट के लिए कौन सा बेसिकली बेटर स्टेटमेंट्स एंड ऑल, एवरीथिंग हो सकता है कि मैं खुद ही डिसाइड करूं, द एडवर्टाइजर और क्लाइंट, मतलब ये कई बार कंपनी खुद ही करती है। अब आते हैं हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं है कि जो इम्पैक्ट प्रॉपर्ली, मतलब वैसे ही कुछ
प्रॉपर वो एडवर्टीजमेंट बना नहीं रही है कि जो प्रॉपरली इम्पैक्ट डाल सके कंज्यूमर पे, तो वो आउटसाइडर का हेल्प लेगी, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में बताया था। अब यहाँ पर वो क्या करेगी, यहाँ पर वो आउटसाइड फॉर्म से जो बेसिकली ये पर्टिकुलरली कुछ कंपनीज होती है जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती है, इंडिया की कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं उनका नाम नेक्स्ट क्लास में लिख कर लेकर आना, ठीक है। लियो बर्नेट पे मैंने खुद एक प्रोजेक्ट बनाया था व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, तो मुझे इसका नाम अभी भी याद है। वो इंडिया के बाहर की कंपनी है और वो यूएस की कंपनी, तो वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है। तो सम एजेंसीज जो होते हैं, जो क्रिएटिव एजेंसीज जो होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट की ही एजेंसी होती है, एडवर्टीजमेंट बनाती है दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो या तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसकी हेल्प ले सकता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। अब ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज होते हैं, किस चीज में स्पेशलाइज होते हैं, क्रिएशन में, प्रोडक्शन में, ठीक है, मैसेजेस बनाने में, और एक इफेक्टिव मैसेज को रेडी करते हैं, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स वगैरह जो हैं, उन्होंने इंडिया में, मतलब इन्होंने नॉट इन इंडिया, इन्होंने 12 एड एजेंसीज की हेल्प ली है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। 12 एड एजेंसीज की वो हेल्प लेते हैं किसको, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती है, कुछ फुल सर्विसेज एजेंसीज होती हैं, ठीक है, और कुछ होती है जो कभी कभी, मतलब इंडिया की कुछ है लीडिंग एजेंसीज के नाम है लियो बर्नेट। तो यहाँ पर आपकी कुछ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं। तो अब मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या होती है, बेसिकली दे आर द डिफरेंट एजेंसीज which are basically making the advertisement of the different product and services of the other companies। यानी ये एक तरीके की कंपनीज के लिए, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक, कैसे हम आर्किटेक्चर जब घर बनाते हैं तो आर्किटेक्चर की हेल्प लेते हैं, आर्किटेक्चर मतलब अपने घर के नक्शे को रेडी करने के लिए, सेम वही है, ये अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, मतलब एडवर्टीजमेंट को रेडी करने के लिए एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को हायर करते हैं, ठीक है। एक है, नेक्स्ट है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। अनदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं आईएमसी के, वो कौन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आपके क्या क्या आ जाएंगे, न्यूज़पेपर आ जाएंगे, टेलीविजन आ जाएगा, चैनल्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है, जो बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करती है, मैसेज को कम्युनिकेट करती है कंज्यूमर, ठीक है, और ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और इसके लिए वो क्या करती है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ टाइम आपको उसमें स्लॉट परचेज करना होता है। जैसे ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, इसने अपना एडवर्टीजमेंट का स्टेटमेंट तो रेडी कर लिया, अब उसको ब्रॉडकास्ट कराएगी तब तो वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। सो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये हम एक तरीके का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म को क्या करती है, वो यूज करती है आपके प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर तक मैसेज पहुंचाने में। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के बीच में एजेंसीज जो है वो परचेज करती है टाइम को, स्पेस को, और एक चीज और भी करती है, जो भी प्रोग्राम ज्यादा जिसका टीआरपी है, जैसे मान लीजिए कि स्टार प्लस में कोई अगर कोई सीरियल है जिसकी टीआरपी काफी हाई है, तो उसमें वो प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है उसके लिए अमाउंट हाई पे करती है, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है उस पर्टिकुलर सीरियल और पर्टिकुलर डेली सोप को देख रहे हैं, ठीक है। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली आपका न्यूज़पेपर, जर्नल, जिसके थ्रू मैसेज कहाँ तक जाने वाला है, कंज्यूमर तक, और उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज है, या तो क्लाइंट या तो कंपनी जो है वो स्पेस को, टाइम को परचेज करती है, फ्रीक्वेंसी को परचेज करती है, ठीक है, ताकि उनके बारे, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज का इंफॉर्मेशन मिले। जैसे आप लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर कभी ओपन करना, फर्स्ट पेज में ही बड़ा सा एडवर्टीजमेंट होता है। आपको पता है फर्स्ट पेज क्यों यूज होता है एडवर्टीजमेंट के लिए? क्योंकि सबसे पहले नजर उसी पेज पे जाता है। क्योंकि फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारा परसेप्शन क्या होता है कि इफ विल सी 5-7 पेज देखने के बाद अगर कहीं छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट है, वो भी 20 एडवर्टीजमेंट के बीच में, तो वी विल नेवर सी दैट, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ कंफ्यूजन, जहां बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हो गए, हम उसको नहीं देखेंगे, दैट इज द ट्रुथ, या अवॉइड हो ही जाएगा वो। लेकिन द फर्स्ट पेज इज दैट पेज वी नेवर एबल टू अवॉइड इट, ठीक है। सो दिस इज द रीजन यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में, जर्नल्स पे, फिर चैनल्स में स्पेस और टाइम को कौन देता है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, मीडिया से कौन खरीदती है, बेसिकली आपकी एडवर्टीजमेंट एजेंसी या फिर एडवर्टाइजर या क्लाइंट। नेक्स्ट है कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज है। अब स्पेशलाइज सर्विस में क्या है, जैसे कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग सर्विसेज या एजेंसीज है। डायरेक्ट मार्केटिंग
इसीलिए तो वो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी स्पेशलाइज सर्विसेज होती है जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करेंगे, यानी मेल करने का, लोगों को मेल करने का काम करना, क्वेरीज का काम करना, कुछ कंज्यूमर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस करना। तो कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज होती है जो स्पेशलाइज सर्विसेज देती हैं। सेल्स प्रमोशन एजेंसीज होती है जो आपको कौन सा इंसेंटिव्स यूज करना चाहिए, कौन सा प्रमोशनल टेक्निक, डिस्काउंट यूज कीजिए, डिले मेथड्स यूज कीजिए। अच्छा, सेल्स प्रमोशन में एक पॉइंट बताना चाहूंगी, इसमें दो तरीके का सेल्स प्रमोशन यूज होता है। एक होता है इमीडिएट एक्शन, एक होता है डिलेड एक्शन। इमीडिएट एक्शन वो होता है जैसे कि आपके तुरंत से जिसपे डिस्काउंट मिल जाए, जैसे मैं आज गई मैक्स पे, मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया, तो दैट इज इमीडिएट। बट डिलेड वाले में क्या होता है ना, जैसे मैंने 50 बार जाकर के वहां से प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी मल्टीपल टाइम परचेजिंग के बाद जो मुझे सेल्स प्रमोशन या टेक्निक, सॉरी, जो इंसेंटिव्स मुझे मिलते हैं उसको कहते हैं डिले, ठीक है। सो यहाँ पर हम सेल्स प्रमोशन कौन सा कैसा यूज करें, उसके अलावा फिर इंटरनेट वगैरह की एजेंसीज वगैरह, ठीक है, पब्लिक रिलेशन फर्म्स वगैरह, इनकी भी हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए कंज्यूमर तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज सर्विसेज में आपके डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज जो ब्लॉग्स लिखते हैं, मेल करते हैं कंज्यूमर को, इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डिस्काउंट एंड ऑल, सेल्स प्रमोशन जो इंसेंटिव्स, डिस्काउंट, सैम्पलिंग, इन सब के आइडिया देते हैं। इंटरैक्टिव एजेंसी जैसे कि आपका आजकल क्या सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर यू कैन इजीली चैट विद द कंपनी पर्सन, कंपनी के पर्सन से आप इजीली चैट कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन फर्म्स हैं, यानी वैसे फर्म्स जो है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बेटर चीजों को लिखेंगे, बताएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हो उसके बारे में। ये सारी जो है स्पेशलाइज सर्विसेज वाले भी चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है आपका एक पॉइंट और है, दैट इज कोलेट्रल सर्विसेज। कोलेट्रल सर्विसेज का मतलब क्या है, जहां पर बहुत कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ एविडेंस, सबूत जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दे प्रोवाइड, कोलेट्रल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट यूज्ड बाय एडवर्टाइजर एजेंसीज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। These individual and companies perform करेंगे specialized function and use planning and executing the advertising, executing and other promotional function. तो collateral service का जो main काम होगा that will be the execution of the plan. यानी कि इन पांचों को जो मैंने अभी बताया उसको मैं एक बार फिर शॉर्टकट में बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहला आता है जो एडवर्टाइजर एंड क्लाइंट, जो कंपनी खुद है, मैन्युफैक्चरर खुद है, वो खुद भी कई बार क्या करती है, वो प्रमोशन खुद के प्रोडक्ट का कराती है, उसके खुद के कुछ इन हाउस एजेंसीज बिल्ड होते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ आउटसाइडर फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड देयर आर वन अदर एडवर्टीजमेंट एजेंसीज देयर। एडवर्टीजमेंट एजेंसी एक तरीके से एक हो सकते हैं थर्ड पार्टी आउटसाइडर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में प्रोडक्ट की क्या करता है, प्रमोशन करता है, बट उसके लिए वो क्या लेता है, चार्ज करता है अमाउंट को, लार्ज अमाउंट या बोल सकते हैं हेफ्टी अमाउंट दे आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से अमाउंट को ले लेता है और उसके बिहाफ में फिर वो प्रोडक्ट का क्या करता है, प्रमोशन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट इज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मैसेज है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा। सो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का यूटिलाइजेशन यहाँ पर, यानी किसको किसको यूज करेंगे आप, न्यूज़पेपर, टेलीविजन को, सोशल मीडिया, ये सबको जो हम यूज करेंगे, और बहुत सारे चैनल्स को यूज करेंगे। अब यहाँ चैनल को जब हम यूज कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, यूट्यूब के चैनल्स हो सकते हैं, बाकी जो आपके दूसरे एप्स हैं जैसे जियो एप्स हैं, आपके हॉटस्टार है, ऑल दीज आर द चैनल्स, में भी मल्टीपल चैनल्स चलते हैं, स्टार प्लस एंड ऑल। अब इसमें जो आप एडवर्टीजमेंट कराओगे उसके लिए आपको टाइम स्पेसेस वगैरह खरीदना, परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एडवर्टीजमेंट इज द एक्सपेंसिव थिंग। तो ये हो गया आपका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अलावा भी और भी बाकी जो प्रमोशंस, जो के प्रमोशनल टूल्स हैं जैसे आपके सेल्स प्रमोशन एंड ऑल, इन सब के लिए भी आप कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज या एजेंसीज को हायर कर सकते हो, जैसे सेल्स प्रमोशन कब देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, ठीक है, और किसको देना चाहिए। तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज अराइजेस इन द माइंड कि कभी भी तो आप सेल्स प्रमोशन नहीं दोगे ना, एक टाइम होना चाहिए प्रॉपर। तो ये सब के लिए आप कोई बाहर के एजेंसीज को हायर कर सकते हो, हु इज गोइंग टू गाइड यू अबाउट द सेल्स प्रमोशन, गाइड यू अबाउट द डायरेक्ट मार्केटिंग। कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज होंगे जो बेसिकली आपके बिहाफ में मेल वगैरह करेंगे, ठीक है। कुछ इंटरैक्टिव एजेंसीज होंगे, इंटरैक्टिव एजेंसीज हैं जो इंटरनेट पे काम करेंगे आपके बिहाफ पे, आपकी कंपनी के लिए चीजों को लिखेंगे। फिर पब्लिक रिलेशन फॉर्म्स वगैरह, पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए वो
आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स थे आपके आईएमसी के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट इन आईएमसी प्रोसेस? आईएमसी और नेक्स्ट क्लास में हमें एक टॉपिक करना है, दैट इज पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी, ठीक है, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। बट पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वी कैन कंप्लीट इट टुडे। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो डिटरमाइन करेंगे प्रमोशन मिक्स? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू डिटरमाइन द प्रमोशन मिक्स? ठीक है, सो पहली बात कि कभी भी आप प्रमोशन मिक्स यानी कोई भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट या मैसेज को यूज कर रहे हो तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक है, सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो प्रमोशन टास्क, इसमें 5 चीजें हैं: टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ मार्केट, स्टेज ऑफ योर प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल यानी पीएलसी क्या है प्रोडक्ट का, बजट अवेलेबिलिटी यानी बजट कितना अवेलेबल है, और आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, छोटी मोटी कंपनीज होती है जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को नहीं ले सकती, नहीं उठा सकती, इनका नहीं कर सकती, तो ऐसी केस में बजट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वी हैव टू चूज द प्रमोशनल टूल, राइट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, कोई लो प्राइस प्रोडक्ट है जैसे कि आपके टॉयलेट सोप्स हो गए, टूथपेस्ट, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गया, तो वी जस्ट नीड टू डू द रिपीट मैसेजेस टू इन्फ्लुएंस एंड रिमाइंड द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर अबाउट द ब्रांड एंड परसुएड द न्यू कंज्यूमर टू बाय। व्हाई वी जस्ट नीड टू डू दिस? बिकॉज ये सारे डेली बेस्ड प्रोडक्ट है और ये कंज्यूमर खरीदता ही खरीदता है, राइट। तो ऐसे केस में व्हेन यू विल यूज द रिपीट परचेज देन दैट इज एबल टू रिमाइंड द कंज्यूमर अबाउट द पर्टिकुलर ब्रांड एंड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, लो प्राइस्ड कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो कंज्यूमर हमेशा यूज करते हैं, जरूरत वाली सारी चीजें, इन सब के लिए हमेशा रेगुलर वाले एडवर्टाइजमेंट वाले क्लेम को यूज करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई हो। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा बार दिखे। ठीक है, और इसमें आप बहुत सारी चीजों को और भी यूज करोगे, और क्या क्या यूज करोगे, जैसे प्रेस एड्स वगैरह, मैगजीन एड्स, टीवी स्पॉट, सिनेमा स्लाइड्स वगैरह, इसको आप यूज करोगे किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए इन सब प्रोडक्ट। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होंगे या फिर हाई टेक्नोलॉजिकल वाले जो प्रोडक्ट होंगे जो इनफ्रीक्वेंटली परचेज किया जाता है, उनको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती कंज्यूमर को, तो ऐसे केस में आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डेमो को दिखा सकते हो, एग्जीबिशन कर सकते हो, सेल्स प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो आपका तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है ना, इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन टूल क्या होना चाहिए। जैसे कि आपके सस्ते वाले डेली यूज कन्वीनियंस प्रोडक्ट, वैसे वाले प्रोडक्ट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट यूज कीजिए और हमेशा उसको फ्रीक्वेंसी जो है उसका हाई रखिए, हमेशा उसके बारे में दिखाते रहिए, कंज्यूमर को रिमाइंड करवाते रहिए। जब आपके कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिनको हम बार बार यूज नहीं करते, बार बार नहीं खरीदते, या जो थोड़े से अनकॉमन प्रोडक्ट्स या बोल सकते हैं लग्जरियस प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो ऐसे केस में यू व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द अनदर काइंड ऑफ प्रमोशनल टूल। जैसे आप पर्सनल सेलिंग यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट डेमो यूज कर सकते हो, एग्जीबिशन करा दो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जिसको हम यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है डेमोन्स्ट्रेट करके उसका बेनिफिट दिखाना, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंट करना। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह को शो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मार्केट। नेचर ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपके मार्केट का क्या नेचर है, द इंटेंस कॉम्पिटिटर कितने प्रेजेंट है मार्केट में, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है, लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, रिक्वायरमेंट चैनल मेंबर्स की एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ चैनल मेंबर्स। ठीक है, अगर टारगेट ऑडियंस बहुत लार्ज है, वाइड है और स्प्रेड आउट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में, तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन जो है वो इफेक्टिव भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपका मार्केट कितना बड़ा है, मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप कितना एक्सपैंडेड फॉर्म में सेल कर रहे हो। जैसे कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पीएनजी हो गया, आपका आईटीसी हो गया, ये सारे जो है पूरे के पूरे एरिया में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो यहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट भी यूज कर सकते हैं और सेल्स प्रमोशन को भी इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल सेलिंग के चांसेस कहीं ना कहीं उनके बहुत कम है, बिकॉज दे हैव अ लार्ज टारगेट मार्केट, बहुत ज्यादा टारगेट, बहुत मार्केट बहुत बड़ा है। ये तो हुआ सिर्फ नॉर्मल एक कंट्री की बात। अगर आप इंटरनेशनली भी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो तो ऐसे केस में द ओनली थिंग टू रीच दैट कंज्यूमर, दैट प्लेस, दैट मार्केट इज एडवर्टाइजमेंट। लार्ज ऑडियंस अगर आपको कवर करना है, यू नो कि पर्सनल सेलिंग इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। ठीक है, तो नेचर ऑफ मार्केट, अगर छोटा मार्केट है और आप बिल्कुल नए नए अपने प्रोडक्ट के साथ आए हो तो यू कैन यूज द पर्सनल
अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज पर हो तो आप कंज्यूमर को क्या करोगे, मोटिवेट करोगे, आप एडवर्टीजमेंट करोगे, आप हो सकता है सब बहुत सारे प्रमोशनल टूल को यूज करो, क्योंकि आपको अवेयरनेस देना है, एबिलिटी के बारे में बताना है और अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। वही आप इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी हर चीज को ट्राई करोगे, आप कहाँ पर कौन से स्टेज में, आप अपने अर्ली ग्रोथ स्टेज में एंड साथ साथ में एक और स्टेज में, दैट इज इंट्रोडक्शन। यहाँ दोनों पे यू विल ट्राई टू डू द एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, राइट। एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हो। और एक और चीज, जैसे ही आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे, जहां ब्रांड वैलिडिटी हो चुका है, नए नए कॉम्पिटिटर्स इन आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कम कर सकते हो, बट यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की डिक्लाइन होने के चांसेस इसके बाद ज्यादा होते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ एडवर्टीजमेंट करोगे, बट यू डोंट नीड टू डू एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, बट यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ प्रमोशनल पर्सनल सेलिंग को छोड़। पीएलसी में आपका प्रोडक्ट का कहाँ पर जगह है, अगर मैच्योरिटी में आपने इंप्रूव किया है प्रोडक्ट, तो आप उसको नए सिरे से दिखा सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप नॉर्मली जैसा चल रहा है एडवर्टीजमेंट आप वही यूज कीजिए, बट एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट आप स्टार्टिंग के दोनों स्टेज में यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में एंड ग्रोथ। बजट अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में आप और भी टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो वॉल पेंटिंग को यूज करती है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स है तो आप डीलर डिस्प्ले, यानी कि जो पर्सन आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा, आपके जो डीलर्स हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वॉल पेंटिंग वगैरह करवा सकते हो, यानी आसपास के एरिया में वॉल पेंटिंग, और रूरल एरियाज में वॉल पेंटिंग अभी भी बहुत चलता है। अभी तो कहीं बहुत सारे जगह पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, बट यू कैन यूज द वॉल पेंटिंग कंसेप्ट, आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर आप पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं है, एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लगता है, तो ऐसे केस में आप जहाँ पर बजट अवेलेबिलिटी कम है और आपका मार्केट एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो ऐसे केस में आप क्या क्या चीजों को कर सकते हो, आप बेसिकली वॉल पेंटिंग कर सकते हो, डीलर के यहाँ पे डिस्प्ले, प्रोडक्ट को डीलर डिस्प्ले करे, रिटेलर डिस्प्ले करे, और आप पर्सनल सेलिंग को भी यूज कर सकते हो। कंपनी की पॉलिसी, अगर जो भी प्रमोशन टूल के साथ सुटेबल है, प्रमोशन मिक्स के साथ सुटेबल है, अगर आपका टॉप लेवल जो भी जिस तरीके का डिसीजन लेगा, उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिक्स को यूज करना है, ठीक है। आपका जो कॉर्पोरेट इमेज बना है, आपका जो ब्रांड है, उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को शो करना है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर अभी एप्पल का कभी आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो दैट इज नॉट द नॉर्मल, मतलब हम जैसे अपने एडवर्टीजमेंट देखते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स का, वो कभी आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। द वे दे आर शोइंग the technology is visible in their advertisement as well. देखा है आप लोगों ने, the technology is visible in their advertisement as well. So what kind of the corporate image you have, you just need to display or promote your product like that, ठीक है। And the decision of the promotion is totally in the hand of top level management, so whatever policy is there they have to follow that, ठीक है। So these are basically, आपका कह सकते हैं these are factors जो है, ये किस तरीके से कौन से प्रमोशन मिक्स को कैसे यूटिलाइज करें, यूज करें, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? PLC स्टेजेस ऑफ पीएलसी, द प्रोडक्ट की अभी कहाँ पर है आपके पीएलसी स्टेज, ओके। सो वी आर गोइंग, Thank you, ma'am.